Hello everyone, this is Priyanka Kalaskar and you are watching Satya Shobhada Mantra channel. Today we are going to solve some important question of Maha TET exam. If you are preparing for Maha TET, then this video is very helpful for you. Here I am covering some important question of pedagogy. Means here I want to cover 11 question depend on pedagogy, and then I will take some question for English pedagogy. So here today we will see total 31 question related on pedagogy. If you are preparing for CTET also, then that time also this video is very helpful for you. So without wasting our time, we will start. What is the first question? Which of the following play important role in the development of moral values in child? मीन्स नीचे जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से मॉरल वैल्यूज़ बच्चों की कब किससे बढ़ने में हेल्प होती है. सो ऑप्शन इज प्रेयर असेंबली, प्रॉपर सोशलाइजेशन, intellect. All options are right. So here all options are positive, so all these options are able to develop moral values in child, so all options are right. Now second question we will see, which of the following is correct sequence of human development. Now so for this question you should know Piaget theory. So if you are preparing for this CTT or TET exam, then you must know the Piaget theory, because Piaget theory is the very basic theory for all theories, and this is very this is depend upon the cognitive development of child. So every teacher should know the Piaget theory and the stages related for Piaget theory. So according to the Piaget theory, first stage will come sensory motor stage. So here I want to show you. So what the sensory motor stage? See, in the sensory motor stage, चाइल्ड एबल टू लर्न बाय द सेंस. मीन्स वो चाइल्ड कैसे लर्न करते हैं? बाय द सेंस से. वो अपने सेंस से लर्न करते हैं, मतलब हाथों से, पाँव से, आई से टच करके वो लर्न करते हैं. नो व्हाट अबाउट द प्री ऑपरेशनल स्टेज? सेकंड स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड स्टार्ट फ्रॉम 2 to 7. नाउ इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज वी कैन से अर्ली चाइल्डहुड. एंड व्हाट अबाउट द सेंसरी मोटर स्टेज? सो सेंसरी मोटर स्टेज इज नथिंग बट infancy. We can say it infancy. So this is nothing but the first stage is nothing but the infancy also, and the second step is pre-operational stage. So this stage we can say infancy. So this nothing but first stage is nothing but the infancy. Second stage we said early childhood. So this is early childhood. In the sequence in the early childhood, child is egocentric. How they are learned? They are learned by symbolically, by language, and then magical thinking. Means they are able to understand by magical thinking. And in this stage also we have two sub stages. Means with two subjects, pre-conceptual stage, and the last is will come that intellectual stage in between 4 to 7. In that stage students will become means less egocentric they become. मीन्स इन दिस प्री ऑपरेशनल स्टेज में उनको इंसल्ट क्या है ये समझ में आती है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि इंसल्ट क्या है. उनको ये पता है कि हाँ मेरी इंसल्ट होगी, बट वो ऐसे बोल नहीं पाते, शेयर नहीं कर पाते हैं. टेडी बियर के साथ खेलना, टेडी बियर को अपना दोस्त समझ में लगते हैं, टेडी बियर के साथ खेलते हैं, बट तो भी उनको लिविंग नॉन लिविंग थिंग जो है उनका वो डिफरेंस नहीं बता पाते कि लिविंग थिंग है नॉन लिविंग थिंग है. उनको कंजर्वेशन का लॉ यहाँ समझ में नहीं आता है सेकंड स्टेज में. बट व्हेन दे आर गोइंग टू द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, then they are able to learn the rules. Conservation rule they are able to learn, then reversibility rule they are able to learn. Now what is the conservation and what is the reversibility? Suppose I am giving means write in descending order, arrange in the descending order, that it is nothing but the reversibility. मतलब हमें सीधे से उल्टा जाना है, फिर उल्टे से पीछे आना है, that is nothing but the reversibility. Now what is the conservation? That is the experiment of glass. See this experiment of glass, again I want to show you. This glass experiment. So in their glass experiment, students are not able to understand कि quantity of water is same. Means what they are thinking कि ये जो मग दिया है इसमें जो भी क्वांटिटी है वही बिग है. वो ऐसा सोचते कि ये जो क्वांटिटी दी है जो थर्ड डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रही है कि उनको ये लगता है कि इसमें ज़्यादा वाटर है, बट इसमें ज़्यादा वाटर नहीं है. वाटर की क्वांटिटी सेम है जो हमने फर्स्ट ग्लास में. देखो ये दो ग्लासेस में हमने सेम क्वांटिटी ली है वाटर की. मीन्स वी हैव टेकन द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, बट ओनली 1 glass वाटर वी हैव फिल्ड ऑन द जार. नाउ दे आर थिंकिंग कि इन दिस जार दे हैव more quantity of water, but it is not a correct.
Now this experiment they are not able to understand in the second stage, means pre-operational stage, but when they are going to the third stage, means in concrete operational, then they are able to understand कि या कि वाटर की क्वांटिटी जो थी वो सेम ही थी, बट सिर्फ जिसमें हमने डाला है वो बॉटल की हाइट ज़्यादा थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, वाटर तो वही है, उसी मात्रा में है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो कंजर्वेशन लॉ है, ये उनको थर्ड स्टेज में समझ में आता है। एंड द लास्ट स्टेज फॉर्मल ऑपरेशन, इसे हम एडल्टहुड पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू द पियाजेट, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन, ये जो नाम है ये स्टैंडर्ड नेम है, बट इनको अदर्स नाम भी है, इसको दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है। जैसे सेंसरी मोटर को इन्फांसी पीरियड कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज को अर्ली चाइल्डहुड पीरियड कहते हैं, जो थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशन जिसे हम एडोलेसेंस पीरियड कहते हैं, और जो लास्ट है उसे हम एडल्टहुड पीरियड कहते हैं। तो अभी हमें ये ऑप्शन देखना है, सेंसरी मोटर मतलब इन्फांसी, तो इन्फांसी टू एडल्टहुड का पीरियड हमें देखना है। तो ये ऑप्शन कहाँ है, इन्फांसी से एडल्टहुड, तो ये पीरियड सेकंड ऑप्शन में। देखिए अभी थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन तो क्लियर कट ही नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में चाइल्डहुड फर्स्ट स्टेज में दिया है। तो फर्स्ट स्टेज तो इन्फांसी है, तो फर्स्ट एंड सेकंड में से ही हमारे कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन सेकंड। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ चाइल्ड ऑफ 6 to 7 years old इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट अदर्स व्यू पॉइंट, मतलब ऐसी कौन सी स्टेज है जब स्टूडेंट जो चाइल्ड है जो दूसरे से पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते हैं, मतलब वो एगोसेंट्रिक होते हैं, वो उनको अपनी ही थिंकिंग में वो रहते हैं। तो वो कौन सी स्टेज है, उसे हम क्या कहेंगे? बिकॉज ही इज़ नॉट टू यंग, बिकॉज ही इज़ टू यंग, मतलब वो बहुत ज़्यादा यंग है इसलिए उसको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आता है, या फिर बिकॉज ही इज़ ईगोसेंट्रिक, बिकॉज ही इज़ नॉट इंटेलिजेंट, बिकॉज ही इज़ इमेजिनेटिव। सो हियर वी कम ईगोसेंट्रिक बिकॉज 6 to 7 ईयर। देखो यहाँ पर क्या कहा है, 6 to 7 ईयर्स, मतलब बच्चा किस पीरियड में है, 6 to 7 ईयर के पीरियड में है, तो ये पीरियड है ईगोसेंट्रिक पीरियड। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज़ द प्राइमरी चेंज दैट ऑकर्स ड्यूरिंग प्यूबेरिटी। नाउ व्हाट इज़ द प्यूबेरिटी, तो प्यूबेरिटी क्या है, प्यूबेरिटी किसे कहेंगे हम प्यूबेरिटी, तो प्यूबेरिटी इज़ नथिंग बट व्हेन बॉडी स्टार्ट्स टू बिकम फिजिकली मैच्योर, मतलब जब बॉडी फिजिकली मैच्योर होती है उसे हम कहेंगे प्यूबेरिटी। सो हियर ऑप्शंस, सोशल मैच्योरिटी तो नहीं कहेंगे, कॉग्निटिव मैच्योरिटी भी नहीं कहेंगे, साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी भी नहीं होंगी, तो ये होंगे सेक्सुअल मैच्योरिटी। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अफेक्टिंग, अभी नॉट अफेक्टिंग कहाँ है, मतलब चाइल्ड की मेंटल हेल्थ पर इसका कोई असर नहीं होता है। सो ये कौन से ऑप्शन हो सकता है अभी इसका, देखिए पॉवर्टी इन द फैमिली है, फीलिंग स्लीपी इन द क्लासरूम है। देखिए अभी क्या कहा है इन्होंने, मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड कहा है, तो इसमें देखिए अभी पॉवर्टी इन द फैमिली ये तो हो सकता है, लैक ऑफ अफेक्शन भी हो सकता है, डोमेस्टिकल क्वारल भी हो सकता है, तो फीलिंग स्लीपी इन द क्लासरूम ये थोड़ा सा हट के ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आई थिंक ये होगा, यस। अभी ये क्यों होगा, देखिए इसमें दिया हुआ एक्सप्लेनेशन दिया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। देखिए क्या दिया है इसमें, चाइल्ड लिविंग इन द पॉवर्टी सफर फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी ड्यू टू द लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज। Lack of affection means what? Children lacking proper affection struggle with the mental health. Lack of sense of belonging makes them experience loneliness and stress. So here option will come feeling sleepy in the classroom. Now we will go to the next option. Next question. Which of the following statement is not correct? Which of the following statement is not correct? So development is a quantitative process. Education is goal oriented process. Learning is a process of behavioral change. Yes, learning कैसे process है, हम learn किस लिए करते हैं, because we have to change our behavior, तभी हम कहेंगे कि yes my learning become successful. So growth is biological process. So इनमें से कौन सा right factor नहीं है, is not correct. So development is a क्वांटिटिव प्रोसेस, डेवलपमेंट तो क्वांटिटिव प्रोसेस नहीं होता, ये क्या होता है, क्वालिटेटिव प्रोसेस होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, क्वालिटेटिव नॉट अ क्वांटिटिव। सो यस, सो डेवलपमेंट, सी नाउ हियर ऑप्शंस आंसर्स गिवन, डेवलपमेंट इम्प्लाइज क्वालिटेटिव चेंज। सो डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव प्रोसेस है, इट्स नॉट अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द अदर नेम ऑफ चाइल्डहुड। इसमें से ऐसे कौन सी स्टेज है जिसे हम चाइल्डहुड नहीं कहेंगे। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अदर नेम ऑफ चाइल्डहुड,
चाइल्डहुड देखिए, अभी स्मार्ट एज क्या है, इसमें से एक ऑप्शन देखो, एलिमेंट्री स्कूल एज, दिस बिलोंग टू द चाइल्डहुड. देन प्री गैंग एज, all the age belong to the childhood, but which is not belong to the childhood period, that is the smart age. So smart age is correct answer. 3. The environment. Next question. The environment in which children grow up will blank space, how they think and what they think about. So we have to put their correct option. So maintain, first option is maintain, then weaken and disturb, scare, and last is influence. So I think the environment के लिए कहा है तो हम answer will become influence. Yes. Now next, out of the following which is not the other name of adolescence, मीन्स हमें अदर नेम विच इज़ नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलसेंस फाइंड आउट करना है. सो विच विल कम ट्रांजिशन पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, प्रॉब्लम एज, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड स्टॉर्म. सो आई थिंक दिस इज अ स्मार्ट एज. yes, it become a smart age. Next, which of the following principle of development is incorrect one. ये उन्होंने कहा है कि एक डेवलपमेंट से कोई ऐसा सेंटेंस दिया है, कोई ऐसा प्रिंसिपल दिया है कि जो इनकरेक्ट प्रिंसिपल है. मीन्स हमें डेवलपमेंट के लिए एक इनकरेक्ट प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है. सो हम जो क्वेश्चंस देख रहे हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर डिपेंड है. देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये बहुत अलग अलग फैक्टर है. ग्रोथ जो है हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट डेवलपमेंट को हम प्रेडिक्टेबल, मीन्स डेवलपमेंट इज अ प्रेडिक्टेबल बट ग्रोथ इज नॉट अ प्रेडिक्टेबल. सो हियर ऑप्शन विल बिकम, मीन्स वी विल फर्स्ट रीड द ऑप्शन. They are, means which of the following principal development is incorrect one, means we have to find out first only for development only. So there are individual differences in development. क्योंकि बच्चा जैसा जैसा बड़ा होता है सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. बढ़ने के लिए सबके अलग अलग डिफरेंसेस होता है. ऐसे नहीं होता कि ये चाइल्ड की डेवलपमेंट ये है तो सेकंड चाइल्ड की भी वही डेवलपमेंट होगी. डेवलपमेंट इंडिविजुअली होते हैं बच्चों की. एंड सो व्हाट विल नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्सिडेंस. देन इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. हाँ, डेवलपमेंट तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ही, वो इंडिविजुअली भी होती है. इट इज़ अ प्रेडिक्टेबल, हाँ हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, पर हम ग्रोथ को मेजर नहीं कर सकते हैं. सो हियर दे आर आस्किंग फॉर डेवलपमेंट ओनली, तो सेकंड ऑप्शन विल कम हियर. नेक्स्ट, एज पर एनसेप 2005, द जनरल एक्सेप्ट विच इज़ अ फिजिकली इनकन्वीनियंस टू चिल्ड्रन. अब चिल्ड्रन के लिए इनकन्वीनियंस क्या है, फिजिकली कहाँ है. देखिए, केयरिंग स्कूल स्टाफ फिजिकली का कोई रिलेशन नहीं उसके साथ, मतलब उसको खुद को इनकन्वीनियंस हो, ऐसा कोई ऑप्शन हमें इसमें से फाइंड आउट करना है. देन वेल ओवरबर्डन स्कूल बैग ये फिजिकली उस खुद के लिए. सो ओवरबर्डन स्कूल बैग विल कम. So here we have covered here 11 question for child development and pedagogy. Now we will see English pedagogy question. Next question, the environment in which children grow up will blank space, how they think and what they think about. So we have to put their correct option become influence. Yes. Now next, out of the following which is not the other name of adolescence, मीन्स हमें अदर नेम विच इज़ नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलसेंस फाइंड आउट करना है. सो विच विल कम ट्रांजिशन पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, प्रॉब्लम एज, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड स्टॉर्म. सो आई थिंक दिस इज अ स्मार्ट एज. yes, it become a smart age. Next, which of the following principle of development is incorrect one. यही उन्होंने कहा है कि एक डेवलपमेंट से कोई ऐसा सेंटेंस दिया है, कोई ऐसे प्रिंसिपल दिया है कि जो इनकरेक्ट प्रिंसिपल है. मीन्स हमें डेवलपमेंट के लिए एक इनकरेक्ट प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है. सो हम जो क्वेश्चंस देख रहे हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर डिपेंड है. देखिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये बहुत अलग अलग फैक्टर है. ग्रोथ जो है हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट डेवलपमेंट को हम प्रेडिक्टेबल, मीन्स डेवलपमेंट इज अ प्रेडिक्टेबल बट ग्रोथ इज नॉट अ प्रेडिक्टेबल. सो हियर ऑप्शन विल बिकम, मीन्स वी विल फर्स्ट रीड द ऑप्शन. They are, means which of the following principal development is incorrect one, means we have to find out first only for development only. So there are individual differences in development. क्योंकि बच्चा जैसा जैसा बड़ा होता है सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. बढ़ने के लिए सबके अलग अलग डिफरेंसेस होता है. ऐसे नहीं होता कि ये चाइल्ड की डेवलपमेंट ये है तो सेकंड चाइल्ड की भी वही डेवलपमेंट होगी. डेवलपमेंट इंडिविजुअली होते हैं बच्चों की. एंड सो व्हाट विल नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ कॉन्सिडेंस.
देन इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हाँ डेवलपमेंट तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ही, वो इंडिविजुअली भी होती है। इट इज़ अ प्रेडिक्टेबल, हाँ हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, पर हम ग्रोथ को मेजर नहीं कर सकते हैं। सो हियर दे आर आस्किंग फॉर डेवलपमेंट ओनली, तो सेकंड ऑप्शन विल कम हियर। नेक्स्ट, एज पर एनसेफ 2005 the general accept which is a physically inconvenience to children। अब चिल्ड्रन के लिए इनकन्वीनियंस क्या है, फिजिकली क्या है, देखिए केयरिंग स्कूल स्टाफ फिजिकली का कोई रिलेशन नहीं उसके साथ, मतलब उसको खुद को इनकन्वीनियंस हो ऐसा कोई ऑप्शन हमें इसमें से फाइंड आउट करना है। देन वेल ओवरबर्डन स्कूल बैग ये फिजिकली उस खुद के लिए, सो ओवरबर्डन स्कूल बैग विल कम। Next question, the environment in which children grow up will blank space, how they think and what they think about. So we have to put their correct option. So maintain, first option is maintain, then weaken and disturb, scare and last is influence. So I think the environment के लिए कहा है तो हम answer will become influence. Yes. Now next, out of the following which is not the other name of adolescence, मीन्स हमें अदर नेम विच इज़ नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलसेंस फाइंड आउट करना है। सो विच विल कम, ट्रांजिशन पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, प्रॉब्लम एज, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड स्टॉर्म। सो आई थिंक दिस इज अ स्मार्ट एज, yes it become a smart age. Next, which of the following principle of development is incorrect one। यही उन्होंने कहा है कि एक डेवलपमेंट से कोई ऐसा सेंटेंस दिया है, कोई ऐसे प्रिंसिपल दिया है कि जो इनकरेक्ट प्रिंसिपल है, मीन्स हमें डेवलपमेंट के लिए एक इनकरेक्ट प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है। सो हम जो क्वेश्चंस देख रहे हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर डिपेंड है। देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये बहुत अलग अलग फैक्टर है। ग्रोथ जो है हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट डेवलपमेंट को हम प्रेडिक्टेबल, मीन्स डेवलपमेंट इज अ प्रेडिक्टेबल बट ग्रोथ इज नॉट अ प्रेडिक्टेबल। सो हियर ऑप्शन विल बिकम, मीन्स वी विल फर्स्ट रीड द ऑप्शन, they are, means which of the following principle development is incorrect one, means we have to find out first only for development only. So there are individual differences in development, क्योंकि बच्चा जैसा जैसा बड़ा होता है सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बढ़ने के लिए सबके अलग अलग डिफरेंसेस होता है। ऐसे नहीं होता कि ये चाइल्ड की डेवलपमेंट ये है तो सेकंड चाइल्ड की भी वही डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट इंडिविजुअली होते हैं बच्चों की। एंड सो व्हाट विल नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्सिडेंस, देन इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हाँ डेवलपमेंट तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ही, वो इंडिविजुअली भी होती है। इट इज़ अ प्रेडिक्टेबल, हाँ हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, पर हम ग्रोथ को मेजर नहीं कर सकते हैं। सो हियर दे आर आस्किंग फॉर डेवलपमेंट ओनली, तो सेकंड ऑप्शन विल कम हियर। Next, as per NCEP 2005, the general accept which is a physically inconvenience to children। अब चिल्ड्रन के लिए इनकन्वीनियंस क्या है, फिजिकली क्या है, देखिए केयरिंग स्कूल स्टाफ फिजिकली का कोई रिलेशन नहीं उसके साथ, मतलब उसको खुद को इनकन्वीनियंस हो ऐसा कोई ऑप्शन हमें इसमें से फाइंड आउट करना है। देन वेल ओवरबर्डन स्कूल बैग ये फिजिकली उस खुद के लिए, सो ओवरबर्डन स्कूल बैग विल कम। So here we have covered here 11 question for child development and pedagogy. Now we will see English pedagogy question.
So here answer is learning grammar in the context through use. Next, reading of literature is essential for children because the child acquires knowledge, develops imagination, acquires difficult word, builds character. देखिए अब ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स दिए हैं. रीडिंग ऑफ लिटरेचर इज़ एसेंशियल फॉर चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को जो लिटरेचर्स में पढ़ाते हैं वो क्या है एक्चुअली. देखिए अभी इस ये जो लैंग्वेज स्किल के जो क्वेश्चन है, सो आई थिंक डेवलप एक्वायर्स नॉलेज, तो ये तो है ही पॉजिटिव. एक्वायर्स डिफ़िकल्ट वर्ड, उनको डिफ़िकल्ट जो वर्ड है उसका नॉलेज मिलने के लिए बोल्ड कैरेक्टर, ये भी पॉजिटिव वर्ड है. बट इमेजिनेशन इन सबसे बेटर है. इमेजिनेशन क्यों बेटर है? देखिए अगर पॉजिटिव ऐसे ऑप्शंस रहे तो हमें वो ऑप्शन ढूंढना है वो सबसे बेटर हो. तो सबसे बेटर क्या है? डेवलप इमेजिनेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, TBLT इन सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग इज. TBLT सेकेंड लैंग्वेज किस लिए है? सो टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग है. Next question, the environment in which children grow up will blank space, how they think and what they think about. So we have to put their correct option. So maintain, first option is maintain, then weaken and disturb, scare and last is influence. So I think the environment के लिए कहा है तो हम answer will become influence. Yes. Now next, out of the following which is not the other name of adolescence, मीन्स हमें अदर नेम विच इज़ नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलसेंस फाइंड आउट करना है. सो विच विल कम ट्रांजिशन पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, प्रॉब्लम एज, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड स्टॉर्म. सो आई थिंक दिस इज अ स्मार्ट एज. येस, इट बिकम अ स्मार्ट एज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट वन. ये उन्होंने कहा है कि एक डेवलपमेंट से कोई ऐसा सेंटेंस दिया है, कोई ऐसे प्रिंसिपल दिया है कि जो इनकरेक्ट प्रिंसिपल है. मीन्स हमें डेवलपमेंट के लिए एक इनकरेक्ट प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना है. सो हम जो क्वेश्चंस देख रहे हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर डिपेंड है. देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये बहुत अलग अलग फैक्टर है. ग्रोथ जो है हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट डेवलपमेंट को हम प्रेडिक्टेबल, मीन्स डेवलपमेंट इज़ अ प्रेडिक्टेबल बट ग्रोथ इज़ नॉट अ प्रेडिक्टेबल. सो हियर ऑप्शन विल बिकम, मीन्स वी विल फर्स्ट रीड द ऑप्शन. They are, means which of the following principal development is incorrect one, means we have to find out first only for development only. So there are individual differences in development. क्योंकि बच्चा जैसा जैसा बड़ा होता है सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं. बढ़ने के लिए सबके अलग अलग डिफरेंसेस होता है. ऐसे नहीं होता कि ये